Good morning, students. Welcome back to online session of class science. Now in standard 10th chapter number 1, the science chapter, his name is chemical reaction. Now in the previous class of the chemical reaction, if we have to study it, if discussing which we are discussing the different type of chemical reactions or equation, in which how we can be represent the chemical equation, how we can be write the chemical equation, how we can balance the chemical equation. That generally circums we have to discussing into the previous classes. Also, why we have to use that the specific state of matter कि solid matter लिखते हैं या फिर liquid है या aqueous solution है gaseous solution, why we have to represent it. Or the sign of arrow which have the left hand side is called as a reactants, but the right hand side is called as a product. So why that should be used as arrow? So if any substance is as a form of catalyst or maybe temperature or maybe the pressure, that generally indicate as a form of the arrow. वहाँ पे arrow पे हम उसका use करते हैं. So also we are discussing like combination reaction and decomposition reaction in the previous classes. Now in combination reaction, if more than two reactants that undergoes for the chemical reaction and generally produce a single substance as a part of product, then it is called as a combination reaction in which carbon plus oxygen that gives carbon dioxide. So more than one single substance that is added on the left hand side, which should be used as the sign of plus sign we have to use as if more than one substances that can be added as a reactant. But what about the products? If it's seen in the form of product that can be as a form of single compound, that is called CO2 carbon dioxide. Now opposite of combination reaction, there is a decomposition reaction. Now decomposition reaction is what? A single compound in which by applying the temperature or by applying the pressure or maybe the sunlight, the single compound that can be break down as a multiple of products, then it is called as a decomposition reaction. Okay, like H2 plus what O2 that gives H2 is a combination, then H2 that gives hydrogen plus oxygen, vice versa, that is called decomposition. That we are discussing in the previous classes. Today we are discussing about the displacement reaction, double displacement reaction, oxidation, reduction, redox reaction, and rancidity, and as well as the corrosion effect. Now before starting that form, that is the questions is what is called as a displacement reaction. What do you mean by the displacement reaction? Also we have to discussing in the chemistry form कि what is called displacement reaction. Now displacement is what? Generally displace मतलब एक जगह को हटा के उसकी जगह पे खुद वहाँ पे आ जाना, that is called displacement. मान लीजिए आप बैठे हैं वहाँ से आपको हटा के कोई और वहाँ पे बैठ जाता है, that is called displace, उसको हटाना. तो वही इक्वेशन हमें इस केमिस्ट्री के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखने को मिलता है. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो आप रिएक्शंस इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर दो तरीके के सब्सटेंसेस यूज होते हैं. एक एक्टिव मेटल्स, हाईएस्ट रिएक्टिव एक्टिव मेटल, और एक लो रिएक्टिव मेटल, ऐसे दो मेटल्स का हम यूज़ करते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि दो तरीके के फॉर्मेशंस ऑफ मेथड का हम यूज़ करते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? सो इन केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive metal that can be displaced the less reactive metal from its solution, then it is called displacement reaction. In a chemical reaction, the more reactive metal that can be displaced the less reactive metal from its solution, then it is called displacement reaction. Okay, यानी एक solution के अंदर अगर आप किसी मेटल को ऐड करते हैं और उस सॉल्यूशन के अंदर कोई लेस रिएक्टिव मेटल ऑलरेडी है और आप उससे ऊपर हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल को अगर आप ऐड करते हैं तो जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होगा उस सॉल्यूशन में से लो रिएक्टिव वाले मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस करेगा. तो इसको आप क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे. सो इन अ केमिकल रिएक्शन द मोर रिएक्टिव मेटल दैट कैन बी डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पे देखिए तो मैंने दो तरीके के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, Zn प्लस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट और जिंक. सिल्वर नाइट्रेट और जिंक में आप देखिएगा तो जो जिंक है वह सिल्वर से ज़्यादा एक्टिव है. तो क्या करेगा? वो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से सिल्वर को वो रिमूव करके उसकी जगह पे खुद आ जाएगा. तो आप देखिए जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर Ag वो आपको मिल रहा है. सिमिलरली दूसरे सर्कमस्टांसिस में भी यही प्रोसीजर है. आप देखिए तो Fe प्लस CuSO4, आयन और कॉपर का अगर कंपैरिजन करते हैं तो कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव मेटल कंपैरिजन टू द आयन,
तो वो कॉपर के सॉल्यूशन में से कॉपर को रिमूव करेगा और आयन उसकी जगह पे डिस्प्लेस हो जाएगा, तो इट बिकम्स FeSO4 + Cu। तो ऐसे में उसके कैसे पता चलेगा डिस्प्लेस हुआ? बाय चेंजिंग ऑफ कलर। मान लीजिए कॉपर अगर ग्रीन कलर का है तो रेड ब्राउन कलर में कन्वर्टेड हो जाएगा आयन उसके अंदर मिक्स करने पे, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे ही दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? इन केमिकल रिएक्शन two reactants react by the exchange of ions is called as a double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? इन अ केमिकल रिएक्शन two reactants that can be changed by the ions, that chemical reaction is called as a double displacement reaction। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए मैंने Na2SO4 + BaCl2, ओके, सल्फेट और क्लोराइड का एग्जांपल लिया है। अभी यहाँ पे जो सोडियम है वो किसके साथ जुड़ रहा है? क्लोरीन के साथ, और सल्फर है वो किसके साथ जुड़ रहा है? बैरियम के साथ, तो दैट जनरली गिव्स एज बैरियम सल्फेट BaSO4 + NaCl। तो इन सर्टेन केमिकल इक्वेशंस इन विच two or more reactants that can be added or changes their ions with the chemical process, that is called double displacement reaction। उसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसको वाइट पार्टिसिपेंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बैरियम आपका जो सल्फेट का फॉर्मेशन जो है या फिर आपका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन अगर मिलेगा उसको आप वाइट पार्टिसिपेंट्स भी कह सकते हैं। दैट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दो हो गए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या। नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक तरीके से डेफिनेशन में आपको समझा दूँ। सो इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अ सब्सटेंस, इन अ केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस के अंदर एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सो इन अ केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस इन अ फॉर्म ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स that receives the oxygen, that is called gain the oxygen and lost the hydrogen। In a chemical reaction a substance in a form of atoms or molecules which gains the oxygen and lost the hydrogen, that chemical reaction is called as a oxidation reaction। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमेशा ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस केमिकल इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन अगर आप ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन को आप वहाँ से रिमूव कर रहे हैं तो उस केमिकल रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इन अ केमिकल रिएक्शन अ सब्सटेंस इन अ फॉर्म ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच गेन्स द ऑक्सीजन और लॉस द हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिसमें आपको मैंने एग्जांपल दिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट Mg+O2 ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है या अगर हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। जैसे हम देखते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो इंटेंसिटी है ऑक्सीजन गैस की, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में 21% है। अगर मुझे उसकी इंटेंसिटी कम करनी है, इफ़ यू वांट टू रिमूव द इंटेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, तो ऑक्सीजन को अगर रिमूव करना है तो वो तो आपका क्या हो गया, रिडक्शन प्रोसेस हो गया। तो उसमें आपको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स से सल्फर के मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन जितना ऐड होगा या हाइड्रोजन जितना रिमूव होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, उससे अपोजिट रिडक्शन होता है। इन अ केमिकल रिएक्शन अ सब्सटेंस इन अ फॉर्म ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच रिसीव्स द हाइड्रोजन एंड लॉस द ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन अगर रिसीव हो रहा है, ऑक्सीजन अगर लॉस हो रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे, रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है CuO+H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, देखो H2 यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया कॉपर के साथ से, तो उसको आप रिडक्शन कहोगे। तो जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उसको आप रिडक्शन कहते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स, REDOX, रेडॉक्स का फॉर्मेशन होता है RED फॉर द रिडक्शन, OX फॉर द ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है। जैसे अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दैट अकर्स साइमल्टेनियसली, उसको आप रेडॉक्स रिएक्शन कहोगे। जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली चल रहा है उसको रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। जिसमें एक आपका ऑक्सीजन को रिड्यूस करता हो तो कोई आपको हाइड्रोजन का एक्सेप्ट करता हो, ऐसे फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली चलते हैं, उसको आप रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अभी रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल मैंने दिया है CuO+H2,
कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इस कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन में आप देखिए तो राइट हैंड साइड मिल रहा है आपको कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड था, राइट हैंड साइड गया तो क्या हो गया, कॉपर हो गया। तो क्या किया उसने, ऑक्सीजन लॉस किया, ऑक्सीजन लॉस किया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। वही यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में आपके पास हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड वो H2O बन जा रहा है, उसने क्या किया, ऑक्सीजन रिसीव किया, वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस अगर अकर हो रही है तो उसको आप रेडॉक्स रिएक्शंस कह सकते हो। इसका एक और एग्जांपल आपको लेना हो तो ले सकते हो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन आप यहाँ पर लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इसका रिएक्शन आप लेंगे तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इस रिएक्शन के अंदर का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दैट शुड बी रिमूव्ड हियर, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया यानी कि रिडक्शन हो गया। यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या हो गया, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। तो इन विच केमिकल प्रोसेस जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस साइमल्टेनियसली अगर चल रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन को आप रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, दैट इज जनरली कॉल्ड एज ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से, पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, इतना हमने डिस्कशन किया है। अभी लास्ट 2 टॉपिक्स जो है दैट इज अबाउट द कॉरोजन्स एंड द रैंसिडिटी। सबसे पहले तो हमें डिस्कशन करना है कॉरोजन्स के बारे में, देन वी मूव ऑन टू द रैंसिडिटी। नाउ कॉरोजन मीन्स व्हाट, सो द मेटालिक सब्सटेंस which gets corroded in the presence of acid and moistures, okay? तो जो मेटालिक सब्सटेंसेज होते हैं, द मेटालिक सब्सटेंसेज विच स्टार्ट टू बी गेट कॉरोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर्स एज वेल एज द एसिड, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉरोजन कहते हैं। व्हेन द मेटल दैट स्टार्ट टू बी गेटेड कॉरोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर्स एंड ऑक्सीजन ऑफ एसिड, दैट जनरली प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कॉरोजन, उसको हम कॉरोजन कहते हैं। जैसे उसका एग्जांपल देखें कॉरोजन के, रस्टिंग ऑफ आयन, आयन का जो रस्टिंग है वो कॉरोजन प्रोसेस है। यूटेंसिल्स ऑफ कॉपर दैट्स आर बी implemented a change of their surface color, it is also part of the rusting of corrosion। तो ये कॉरोजन के अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स है कि कॉरोजन्स क्या है उसमें सबसे इम्प्लीमेंट है। अभी क्या होता है कि ये जो कॉरोजन के वजह से ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कॉरोजन्स, आयन दैट कवर्ड विद द रेड ब्राउन सब्सटेंसेज, जैसे आयन के सब्सटेंसेज होते हैं, when the iron substances that start to be get corroded, when the corrosion process is going on, the red brown surface of the powder that can be seen onto the surface of iron। जैसे हमारे घर के अंदर विंडोज़ आयन की है या बाहर जो ग्रिल्स होती है वो आयन्स की होती है, तो इफ़ यू सीन दैट ऑन द surface of iron there is a red brown powderic structure which have been seen onto the surface of iron, so that is generally called as a rusting of iron, that is also known as a corrosion। So rusting of iron it's called as a part of corrosion। So when the metallic substances that start to be get corroded in the presence of moistures of oxygen, that entirely process is called as a corrosions, in which I'll give the example। So corrosions that generally damage the objects, जो भी objects हैं आपके metallic objects होते हैं, iron के objects होते हैं, so metallic substances of iron that start to be damaged by the presence of corrosions, और उसके जो बॉडीज़ होते हैं, जो मेटालिक सब्सटेंस की बॉडी होती है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कौन कौन से सब्सटेंस, लाइक ब्रिज, ब्रिज आप आयन का यूज़ करते हैं, फ़ैन के अंदर आयन का यूज़ करते हैं, रेलिंग है, शिप्स है, ऐसे बहुत तरह के सब्सटेंसेस जहाँ पे हम आयन का यूज़ करते हैं। सो दैट स्टार्ट टू बी गेट कॉरोडेड और उसको डैमेज करना स्टार्ट करता है। सो उसका हमें प्रिवेंट करना है, इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट द कॉरोजन व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमें कॉरोजन को अगर प्रिवेंट करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो वी हैव टू यूज़ द गैल्वेनाइजेशन मेथड। गैल्वेनाइजेशन मेथड के अंदर एक स्पेसिफिक आयन के लेयर पे एक दूसरे मेटल का लेयर को गैल्वेनाइज करना, ओके। सो उसको गैल्वेनाइज करेंगे तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स अवेलेबल है मॉइस्चर्स ऑफ ऑक्सीजन विच नॉट बीन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द आयन, वो आयन के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा। सो इफ दिस टाइप ऑफ द मॉइस्चर्स ऑफ आयन डू नॉट गेट टू द कम्युनिकेट विद आयन, सो देयर इज नो एनी चांस टू बी गेट द कॉरोडेड ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस, इट नॉट बी गेट टू बी मैरिड। उसके अलावा oil, or if you use the oil onto the surface of this type of metal of iron, painting surfaces you can be used, greasing, so these are the methods by using we can be prevent the corrosion। So prevention of corrosion that can be generally done by the coating of iron surface with the zinc material that is called as a galvanization, galvanization method का use कर सकते हैं। So that is about the corrosion। Now
लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी. नाउ रेंसिडिटी मतलब क्या? इट इज नॉट अ सिमिलर लाइक एसिडिटी, इट इज कॉल्ड एज अ रेंसिडिटी. When acidity when fills, that is already we discussed into the chapter of biology. When the more and more HCl that is secreted in the part of the digestion of food, so that gives the acidic medium into your stomach. So it should be also be decrease the pH value in our stomach. So it should be create the acidic medium. So it is called acidity. Okay. Now we are discussing about the rancidity. RANCIDITY, rancidity. So what do you mean by the rancidity first? So when the food that containing the oil and fat, generally food most ofly as a part of the vegetables which contain the oil and fat, or some other the snacks and other formation of the foods which most ofly get the oil. So when the food that contain oil and fat and which is kept in an open air of surface, okay, अगर food के अंदर if the food that contain the oil and fat and that is contained into the open area surface, अगर उसको आप open area surface इसके अंदर रखते हैं, so there is process which should be taken, chemical process that is called oxidation. ऑक्सीडेशन प्रोसेस वहाँ पे होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेगा, वो फूड के अंदर जो ऑयल और फैट है वो केमिकली इक्वलाइज्ड होंगे और केमिकली ज्वाइन होंगे और वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा. सो व्हेन द फूड दैट कंटेन द ऑयल एंड फैट generally which is kept into the open air surfaces that start to be become oxidations, and that oxidation of food that is generally called as rancid. इसको आप क्या कहोगे, rancid कहोगे. So due to that effect of oxidization of food of rancid, the food that loses the taste or maybe the change of its taste, उसके change के अंदर taste और उसके changes हो जाते हैं. ये जो changes होता है उसके taste के अंदर या उसके smell के अंदर, that process is called as a rancidity. That is generally called as a rancidity. उसको हम rancidity से consider करते हैं. अभी यहाँ पे क्या होता है कि अभी हमें food को avoid करना है. If I want to avoid this rancidity effect in our food, तो usually if you want to remove the rancidity effect of the food that containing oil and fat, so the food which contain the oil and fat, so substance which are added in the food which generally used to prevent the effect of the rancidity, तो ऐसे सब्सटेंसेस को आप क्या कहते हो, एंटीऑक्सीडेंट. दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर जनरली नॉन एज एंटीऑक्सीडेंट. सो दिस टाइप ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट विच इज एडेड इनटू द फूड, सो रेंसिडी दैट शुड बी रिट्रीटेड. रेंसिडी उसके अंदर से इफेक्ट होना कम होने लगता है. सो मैन्युफैक्चरिंग लाइक पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको प्लास्टिक के अंदर फिक्स किया जाता है और फ्लैश बैग्स होते हैं. द पोटैटो चिप्स और फ्लैश बैग्स ऑफ द चिप्स दैट गेट टू बी antioxidant by the nitrogen gas, so the food cannot be get oxidized, so it not become the rancid, so there is no any effect of changes into the food. So to prevent that rancidity effect we have to use the antioxidant. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो that should be included into the chapter number 1 जो आज हमने डिस्कशन किया है. Only we discussing about the today displacement reaction, double displacement reaction, oxidation reaction, reduction reaction, redox reaction, as well as the rancidity effect and that is called corrosion. उससे पहले हमने डिस्कशन किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन. उससे पहले भी हमने डिस्कशन किया था हाउ वी कैन बी राइट द केमिकल इक्वेशन, हाउ वी कैन बी रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशंस, व्हाई वी नीड टू बी बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, हाउ वी कैन बी रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन इन अ सिंगल टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, जिसमें कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है. CO है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड. तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं उस हिसाब से उसके नेमिंग कन्वर्जेशन के अंदर भी चेंजेस होता है. सो दैट वी डिस्कसिंग इन द प्रीवियस क्लास. सो दैट इज इनफ फॉर द चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस. एक पूरा नोट्स आपको प्रिपेयर करना है, लिखना है, प्रिपेयर करना है, पूरा रिवाइज करके डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, डीकम्पोजिशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या, एज वेल एज रेंसिडिटी क्या होती है और कॉरोजन क्या है और कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो टिल टुडे ओनली फॉर दिस चैप्टर 1 दैट इज द कंप्लीटेड चैप्टर 1 ऑफ केमिकल रिएक्शन. जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे देन वी डिस्कसिंग मोर अहेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. टिल बाय.